They say HR and they give you marketing. They literally ask you to sell such a shitty course in the name of the internship. So if you're a student, I would definitely recommend you to watch this video till the end so that you get saved from such toxic internships. Hello everyone, this is Sivalakshmi Sahu. I'm a recent graduate and I'm going to help you to stop making those mistakes which I've already made. So in this video, I'm going to talk about my first ever internship just after my 12th. I was really excited to do something new after completing my 12th. I was just waiting for an opportunity to explore myself and try to think of what can I have as my potential to explore. I believe most of us, after we complete our 12th, we start off thinking different kinds of opportunities that we can explore just in order to even bear our own expenses, if not cover everything, right? We always have that mentality that we want to do something on our own. And trust me, even I was with the same mentality that I just wanted to take care of my own expenses at least. Not every time going and asking my parents that I need some money to do hangout or eat or anything. And first of all, it was COVID time. This first internship that I took in my life while I just completed my 12th is something that really changed my point of view for different kinds of internship scams going out there. Literal big legit scam. Realizing this is not actually what they promise and this is not what they deliver once you get into the internship. So I just wanted to prevent getting into such scams where you're promised something but you are given something later on. So it was actually pandemic time. So like we had that COVID lockdown going on and you know that we all get bored at home. Many people started playing games and all, but I was not into games. Alright. So I thought of like, why can I not do internships? I'm a kind of person who loves to learn different kinds of things. So what happened is, during that COVID pandemic, I got a call from my friend and she told me that, Sivalakshmi, I'm doing this internship. तुम्हें मन है क्या? तुम्हें भी करना है क्या? That means, do you also want to do? So I was like, yeah, sure, why not? She just gave me a call to inform regarding internship and we just had a normal talk. And then I realized, okay, I was also looking for an opportunity. And since my friend is already into it, I thought, of course, it's going to be something legit. Actually, she even herself didn't know that this can turn out in this way. So wait till the end of this video. You'll get to know different kinds of things, what is going out there, and how can you save yourself from all these kind of things. When my friend called me and told me this, I was very happy that, okay, this is going to be my first internship. I quickly filled the form that she sent me. And the moment I filled, I was very much like on cloud nine. Okay, this is something new. I'm going to do something really good. I applied for HR role and listen what happens. All right. So I get a call regarding interview. I attend the call and I answer the basic questions that they asked me. They told me that I'm selected. After this, just listen what happened, okay? She told me that I'm eligible for this internship. I was like very happy. Oh wow, that's my first opportunity. It was my first time earning something on my own. Later on, they told me that your first task is to sell course to people. I was kind of confused. I applied for HR. Why am I doing marketing? So that is the exact question that I asked the person who was guiding me that time. And the person told me that we are checking your convincing skills. Only after this we'll be eligible for the next task. Like thinking, okay, all right, maybe that's how it works because I had no prior knowledge. I had nobody to guide me about internships and all these things. I was a bit taken aback because this is something really new for me. I did not know how to sell courses or anything like that. They gave me, I think, 2 to 3 days of time to do that. And if I'm not doing that, I'll not be going on to the next level of the HR internship, so-called. I was like, okay, maybe that is how it works for them. I don't know how to do pitching. I don't know anything that time. So I was just doing whatever I knew that time. Whatever came to my mind, I just did it all impromptu. Fortunately, I was able to make 2 to 3 sales. Like one, I think I paid it myself. So that also counts. 500 ka course something it was. So I took that on for myself and then I asked my friends also to take it. So like it was, I called up a few people, but out of those, only 2 people or something like that agreed. So somehow I completed this task. Once I was promoted, like to the task 2, they said me that I did really good. Even though their target was 5 sell. So their target was 5 sell, say like 5 sales, not sales. Okay. This is what happens when I'm on camera most of the times. But anyways, I'm gonna do this. Alright. So task 1 complete करने के बाद they added me to some group. उस group में it was like we all were there. जो भी ये task complete करके आए हैं, तो उनको second task दिया जा रहा है. अब सुनो, second task क्या होता है? बाद में कहानी बहुत interesting होगी. तुम थोड़ा सुनते जाओ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं and कैसे कैसे चीजें हो सकती है, ताकि आप careful रहें और मेरे जैसी गलतियां ना करें. At the end of the day, मैं भी human ही हूँ. होती है गलती, but उससे सीखना बहुत जरूरी होता है. मेरा task 1 complete करने के बाद they added me to a group. अब सुनो, इसके बाद मेरा क्या task होता है? पहले तो क्या था? 3 कोर्स बेचने हैं. Like they gave a target of 3 to 5, I guess. But मैंने कुछ 2 to 3 किया. And they said, okay, that's fine. मैं खुश हो गई. ठीक है, इतने में हो गया तो काम. अब second task में क्या होता है?
You need to recruit 10 to 15 people from LinkedIn. Like, recruit people, ठीक है? Just listen to this word. You need to recruit 10 to 15 people from LinkedIn. LinkedIn तो मेरा था ही नहीं तब. And I was like, 10 to 15 people, which was very unrealistic to me. मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं ये टास्क कैसे करूं. And I told that मेरे पास तो LinkedIn प्रोफाइल भी नहीं है, तो मैं कैसे करूं ये टास्क. I got the response that तुम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लो, we'll guide you. मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना प्रोफाइल बना लिया लिंक्डइन का जल्दी से. मुझे स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये लिंक्डइन इंटरफेस, क्योंकि कभी चलाया नहीं है, कभी वीडियोस नहीं देखी उसकी. तो मैंने सोचा चलो कुछ तो हाथ यहाँ पे वहां पे मारते मारते सीख गई मैं लिंक्डइन. तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि लिंक्डइन से ये लोगों को रिक्रूट करने बोल रहे हैं. तो मैंने सोचा शायद लोगों को कुछ हायर करना पड़ेगा कोई काम के लिए, बट ऑनेस्टली नहीं, दिस वाज नॉट द केस. इनका कैसा था, यू नीड टू गैदर मोर इंटर्न्स, एंड उसको वो लोग रिक्रूटमेंट कहते थे, टू डू द सेम थिंग दैट आई हैव डन इन टास्क 1 एंड देन कंटिन्यू फॉरवर्ड के टास्क मैं बताऊंगी. हैव पेशेंस, ठीक है. तो ये लिंक्डइन का टास्क लाइक हर रोज 10 से 15 लोग को रिक्रूट करना था. फ्रेश अकाउंट है, तुम्हारे कोई कनेक्शंस भी नहीं है, और तुम कुछ पोस्ट भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि वायरल चले जाएगा पहले दिन में, राइट? तो मेरा भी वही हाल था. सिचुएशन मेरी वैसी ही थी, इतनी घटिया थी कि मुझे लिटरली मन कर रहा था छोड़ने का, बट फिर आई वाज लाइक इतनी जल्दी नहीं, पहला इंटर्नशिप है, एंड वो होती है ना चिल मची रहती है पहली इंटर्नशिप, कैसे तो भी कंप्लीट करूं एंड तक. मैंने भी वही किया, ठीक है. मैं आपको बताती हूँ आगे आगे क्या हुआ. बहुत इंटरेस्टिंग होती है सामने सामने स्टोरी. एक अच्छी बात थी कि जो भी टास्क हो रहा था तब मेरी जो टीम लीड थी वो अच्छी थी, शी वाज नाइस टू मी. एंड जो टीम लीड की भी जो हेड थी तो वो भी ठीक थी, नॉट बैड. ये चीज एक हफ्ते तक चली, जहाँ पे मुझे 10 से 15 लोगों को रिक्रूट करना पड़ता था. अगेन ये रिक्रूट, आई डोंट थिंक इट्स अ राइट वर्ड फॉर दिस, बिकॉज तुम इंटर्न्स को ऑनबोर्ड कर रहे हो बाय रीचिंग आउट टू देम ऑन योर ओन. लाइक मुझे रीच आउट करना पड़ता था, उनको एक फॉर्म भेजना पड़ता था कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस इंटर्नशिप, ब्ला ब्ला ब्ला. सो दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड रीचिंग. ये सामने जाके आपको समझाती हूँ. एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे तैसे करके मैंने जितना भी हुआ मुझसे कर लिया मैंने. एंड फिर मेरी टीम लीडर ने कहा मुझे कि तुम अच्छा कर रही हो, तुम्हें 3rd लेवल पे प्रमोट किया जाता है. मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे ये फिर से नहीं करना पड़ेगा ये रोज रोज का 10 से 12 लोग कहाँ से लेके आओ रोज का. मुझे लगा था अब और इससे बुरा क्या ही हो सकता है. एक चीज मैं आपको सिखाती हूँ आज, लाइफ में अगर आप सोचते हो कि इससे बुरा क्या हो सकता है, उससे बुरा कुछ ना कुछ होगा ही. तो ताने ऐसे ही होता है, ठीक है. यू नो व्हाट, वी यूज्ड टू हैव दीज मीटिंग्स जहाँ पे हम टीम लीड्स के साथ बात करते थे, एंड वी यूज्ड टू हैव दिस मीटिंग्स फ्रीक्वेंटली. एंड अब इस स्टेज के अंदर अंदर आई थिंक मेरा कॉलेज शुरू भी हो गया था. अब मेरे काम बढ़ गए क्योंकि कॉलेज फर्स्ट ईयर है, असाइनमेंट्स, नए नए चीजें सिखाई जाती है. यू आर बेसिकली, तुम कॉलेज लाइफ भी अब हैंडल करने वाले हो अलॉन्ग विद दिस इंटर्नशिप, राइट? तो इनका 3rd टास्क क्या था, वी नीड टू कॉल द इंटर्न्स. 3rd लेवल में इन इंटर्न्स का पूरा डेटा पेस्ट होता है एक एक्सेल शीट पे. उस एक्सेल शीट से हम कॉल करते हैं उन इंटर्न्स को, एंड हम पिच करते हैं कि उन्हें ये कोर्स लेना पड़ेगा अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं. इनकी जो पोस्टर होती है ना, ये लोग कहते थे यू गेट स्टाइपेंड 10 to 15 के. तो सामने वाला बंदा तो अट्रैक्टिव होगा क्योंकि किसको नहीं चाहिए पैसे. और स्पेशली जब हम कॉलेज में होते थे, हम लोग का मन वही चलता था कि कम से कम हम अपना खर्चा उठा ले, कि मम्मी पापा हमें हर छोटी चीज के लिए ना पूछे कि तुमने इस चीज के लिए क्यों पैसे लिए या क्यों लिए है ये पैसे. तो वही माइंडसेट रहता है. तो हमें कहीं से भी पैसा आता है हम ले लेते हैं, राइट? एज लॉन्ग एज इट्स नॉट फ्रॉम रॉन्ग सोर्स, यू आर स्मार्ट इनफ. रोज मुझे और मेरे जैसे जो मेरे पीयर्स होते थे, वो डेली रिपोर्टिंग करना पड़ता था अपने टीम हेड को कि मैंने आज कितने लोगों से बात की, कितना क्या हुआ, एंड ऑल दीज थिंग्स. कोल्ड कॉलिंग इतनी सिंपल नहीं होती है. कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्सन को रीच आउट कर रहे हो, वो पर्सन आपके पास नहीं आता है. तो आप ही समझो, दुकान में आप जाके कुछ खरीद रहे हो, ज्यादा चांसेस होते हैं खरीदने के. लेकिन आप बस मानो आप कहीं बाहर खड़े हो और दुकान वाला आपको आके कहता है ये लो ये लो ये लो, आप लोगे नहीं, राइट? ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग नहीं लेंगे, शायद तुक्के से 2 लोग 1-2 लोग आ ही जाएंगे, बट मोस्टली मेजॉरिटी टाइम्स नहीं होता है. जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज को खरीदने को, आप जाते नहीं हो. तो अब अगर कोई इंसान आ रहा है तो दुकान वाले को कितना दिमागदार होना पड़ेगा अगर उसको खुद आके अपने प्रोडक्ट को आपके सामने पिच करना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. तो मुझे लोगों को रीच आउट करना पड़ता था. इनिशियली इट वाज लाइक वेरी हेक्टिक बिकॉज हमें वो पिच देख के एक साइड पे फोन रख के आई यूज्ड टू सी दैट पिच एंड टॉक टू दैट पर्सन. धीरे धीरे आई बिकेम हैबिचुएटेड टू दिस प्रोसेस. रोज के टारगेट्स होते थे, एंड ऑल्सो हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन उसी के रिलेटेड होती थी. तो इट बिकम्स हेक्टिक जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी. स्टार्टिंग में चीजें कुछ इजी नहीं थी, मैंने धीरे धीरे सीखा, एंड फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया, एंड मेरे सेल्स आ रहे थे, लोग मेरे से ले रहे थे, लाइक उनको मेरी वे ऑफ टॉकिंग पसंद आ रही थी. एंड कुछ लोग ऐसे कनेक्ट हो जाते थे एज इफ लाइक मैं उनकी कोई बड़ी बहन है. तो कॉलेज एक बार शुरू होने के बाद इट वाज गेटिंग वेरी हेक्टिक फॉर मी, बट फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी. आई वाज कंटिन्यूइंग विद दैट. अब तुम सोचो कि कोई तुम्हें लिटरली बार बार कॉल कर रहा है तुम्हारे बोलने के बावजूद, कि हमारे कॉलेज में फोन अलाउड नहीं था. ये बात सच है कि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल फोन अलाउड नहीं था. एंड मैं ये चीज जब उनको बोली,
देयर रिएक्शन वाज लाइक ये हो ही नहीं सकता, कॉलेज में कैसे फोन अलाउड नहीं होते हैं। अब जाके थोड़ा रिसर्च कर लो, बहुत सारे कॉलेजेस होते भी है जहाँ पे फोन अलाउड नहीं होता है। एंड उन्होंने स्टार्टिंग में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया, फिर धीरे धीरे उनको लगा ठीक है बहाना बना रही हूँ। मैंने भी सोचा अब इनको लगता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एंड उस पॉइंट पे भी मुझे गिव अप करने का मन कर रहा था, बट मैंने अपने आप को रोका, थोड़ा एंड्योर किया। कोर्स का प्राइस था वो 500 था, तो 500 वर्थ की कोर्स जितने भी तुम सेल करते हो, ईच सेल पे तुम्हें 40 या 45 रुपीज मिलता है। अपना खुद का मैथ कैलकुलेशन कर लो कि कितने सेल्स होने चाहिए कि अगर तुम्हें महीने का 15,000 चाहिए या 10,000 चाहिए। बट ये चीज हमें पहले नहीं बताई गई थी, हमें लगा था कि एक फिक्स्ड स्टाइपेंड होगी। तो कैसे तैसे मैंने वो काम कर लिया। एंड लाइक आई थिंक वो काम मैंने 1 मंथ या 1.5 मंथ अप्रॉक्स कुछ किया। उसके बाद मेरे टीम हेड ने मुझे बोला कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, सो आई विल बी प्रमोटेड टू टीम हेड। बट ये चीज बेटर थी कंपेयर टू ऑल द अदर टास्क, क्योंकि टीम हेड बनना इज लाइक यू हैव टू गाइड पीपल, नाउ यू डोंट रियली हैव टू प्रमोट द कोर्स। अब तुम्हें जो लोग कोर्स ऐसा कॉल करते थे जैसे मैं करती थी टास्क 3 में, वैसे तुम्हें तो जो लोग कॉल करते थे मेरे जैसे, अब मैं उनकी टीम लीड बन चुकी हूँ। अब मैं मीटिंग्स कंडक्ट करती हूँ, अब मैं मीटिंग्स सिर्फ अटेंड नहीं करती हूँ। तो देयर वाज अ शिफ्ट इनटू दैट। टास्क 4 में आने के बाद मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि मतलब ये एक्चुअली कर क्या रही हूँ मैं। मतलब मेरे को बोला गया था HR, मैंने HR के लिए अप्लाई किया था, फिर मुझे मार्केटिंग ही करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे HR आया कहाँ से मेरे को समझ नहीं आ रहा था। HR की थोड़ी बहुत वाइब मेरे को कब आई, व्हेन आई रीच्ड टास्क 4, जहाँ पे मैं टीम लीड बनी थी, मैं लीड कर रही थी। And not purely HR बोल सकते हैं, but yes, kind of HR thing. I was managing people, right? So it was kind of considered HR. मैंने अपने आप को brain wash ऐसे ही किया है, अब करूँ तो क्या करूँ। And I somehow continued that because it was my first internship. मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि सुबलक्ष्मी छोड़ दे तो बहुत और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। नहीं, एक तो नहीं छोड़ना था यार। मेरे को वो अंदर से फीलिंग आ रही थी कि इसको छोड़ दे, बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे ना बार बार कॉल किया जाता था सुबह से लेकर कि कितनी सेल्स आई है तुम्हारी टीम से। और जब मैं प्रीवियस टास्क भी करती थी ना, तब भी मुझे बार बार कॉल्स आते थे, जबकि मैं कॉलेज में रहती थी, मेरा फोन स्विच ऑफ रहता था। एंड फिर बीच में मेरे को फ्रेशर्स आया था, फ्रेशर्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैं डांस में थी, रैंप वॉक में थी, तो इट वाज गेटिंग सो हेक्टिक कि वहां पे एक फिक्स वर्क आवर नहीं था। मीटिंग्स कभी कभार रात तक चलती थी। एंड मेरे लिटरली घर वाले मेरे को डांटने लग गए थे कि तो ऐसा क्या कर रही है, और अगर कुछ ऐसा बड़ा कर भी रही है तो पैसे कहाँ पे। अपने ब्राउन पेरेंट्स के बारे में आपको पता ही है, जो तो इतनी मेहनत करती है वो है कहाँ पे, मतलब उसका हिसाब कहाँ पे है। मैं कैसे बताऊं कि ये लोग मंथली कुछ नहीं देते हैं वैसा। हाँ, मुझे इंसेंटिव्स मिलता था, एंड वो इंसेंटिव्स ऐसी था लाइक वही 40 रुपीज पर सेल एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड बीच में थोड़ा वो क्या बोलते हैं संडेज रिलेटेड, और अगर तुम इस डे को काम करते हो, इतनी सेल्स आई, सो एंड सो सेट ऑफ नंबर्स थे, तो तुम्हें इतना थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो कुल मिला के जो भी आया था, आई वुड से कि नहीं था भाई, वो उतना बस नहीं था। एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो बस नहीं था, बट जो मैंने मेहनत की है, जितनी मेहनत हम करते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज टास्क, उसके हिसाब से लिटरली नहीं था। मेरी जो टीम लीड पोजीशन थी वहां पे मैं खुद सेल नहीं करती थी, अपनी टीम से करवाना पड़ता था जो मेरे नीचे थे। तो मेरी एक 10 से 15 लोग की टीम थी मेरी, एंड मेरे सबके साथ बहुत अच्छी बनती थी, सबके साथ, क्योंकि द वे आई यूज्ड टू लीड इज टोटली डिफरेंट। मैं ऐसा नहीं कि हर टाइम स्ट्रिक्ट बैठी कमांड कर रही हूँ, नहीं, मैंने एकदम एक फ्रेंडली एस्टैब्लिशमेंट रखा था। ऑफ कोर्स एक बाउंड्री थी, बट मैंने लोगों को सिखाया चीजें, इतनी शिद्दत से सिखाया, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैंने फेस किया मुझे वो फेस करवाना नहीं था किसी को। मुझे लोग खुद मैसेज करते थे कि दे आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव अ मेंटर लाइक मी। मैं अपनी सेल्फ बोस्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये चीज होती है कि जस्ट बिकॉज मेरे साथ जो हुआ वैसे ही इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसी माइंडसेट नहीं थी मेरी। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैंने कुछ ऐसा झेला है, मैं उनको पहले से ही सिखा दूंगी। अपने आप में वो लीडरशिप पोटेंशियल देखने लग गई थी। एंड ट्रस्ट भी, वो खुशी अलग ही लेवल की होती है जब कोई सामने वाला इंसान आपको खुद आके फीडबैक देता है। आपने कोई फीडबैक नहीं पूछा, बट सामने वाला आपको आके फीडबैक देता है कि मैं आपके टीम में हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। कितना प्यारा होता है, पता है, वो बहुत अच्छा लगता है। हमारी CEO के साथ भी मीटिंग्स होती थी कभी कभार, तो जब भी होती थी, ऑफ कोर्स मेरी परफॉर्मेंस, जिनकी भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनको उनका दिखता ही है, तो वो दिख रहा ही था। तो मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा था, आई वॉज ऑल्सो बीइंग नोटिस्ड। लेटर ऑन मुझे CEO के पास एक कॉल आता है कि दे हैव अ पोजीशन टू ऑफर टू मी, लाइक सामने जाकर मैं फेस ऑफ द कंपनी भी बन सकती थी। मैंने डिनाई कर दिया। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाऊंगी जहाँ पे मुझे लिटरली कंपनी के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं इतना टाइम दूं कंपनी को। फेस ऑफ द कंपनी बनने के लिए कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज के साथ बात करनी पड़ेगी, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो वो पोजीशन मैंने डिनाई किया, क्योंकि आई नो मैं वो तब नहीं कर पाऊंगी, एंड मेरे घर वाले तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे तब।
कौन करेगा 18 साल के बच्चे को? आपको करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पेरेंट्स तो नहीं करते थे। तो उस ऑफर को मुझे टर्न डाउन करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक्स। तो अब कुछ महीने बाद, लाइक 1-2 महीने के बाद, मेरी टीम लीड चेंज होती है। जो पुराने वर्कर्स थे कंपनी में, ऑलमोस्ट सब वॉश आउट हो जाता है। लाइक उनसे फोर्स रिजाइन करवाया गया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनके साथ एक बॉन्डिंग थी। वो जैसा भी काम था, जो भी हेक्टिकनेस थी उस काम में, मैं फिर भी उसको कर रही थी क्योंकि एटलीस्ट आई हैड सम पीपल जिनके साथ थोड़ी बहुत ठीक है, अच्छी है मेरी रिलेशन वहां पे। अब तुम ही सोचो, जब कंपनी में लोग ही ऐसे हो गए अब कि पूरे करप्टेड माइंड्स है जो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो दूसरी वाली आई, स्टार्टिंग में एकदम बहुत स्वीट बात करती थी, इतनी स्वीट कि भाई तुम उस इंसान पे शक ही नहीं कर पाओगे कि वो इंसान ऐसा भी है, बट होते हैं। दैट इज वाई बी केयरफुल। तो अपने आप को ना बहुत कंट्रोल में रखो। मैंने ये चीज बहुत हार्ड वे में सीखी है लाइफ में ना। कुछ लेसन इतने हार्ड थे मेरे लिए, बट जो भी है, सामने की वीडियोस में भी बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ आपको। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक भी कर लेना अगर आपको पसंद आई होगी। अब शुरू होती है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स 2.0। एक भाई जो टॉर्चर सहा है मैंने, भगवान ना करे किसी को ऐसी इंटर्नशिप में। खाने तक का टाइम नहीं मिलता था ढंग से, मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता था, फिर घर आने के बाद अपना असाइनमेंट्स करना पड़ता था, फिर लाइक कॉलेज में भी लंच ब्रेक में मैं लंच नहीं खा के बैठ के आई एम टेक्सटिंग एंड डूइंग कोल्ड कॉलिंग। काम काम ही काम, मेरे जिंदगी में और कुछ था ही नहीं वो जितने भी महीने में वहां पे थी उस इंटर्नशिप में। बट एक होता है, एक लिमिट होता है एक इंसान की सहने की, एंड मेरी लिमिट ऑलरेडी लाइक नाक तक पानी आ चुका था, अब उससे भी ऊपर जा रहा है। तो आई वाज लाइक नो। बट देन उनकी ना एक्सपेक्टेशन फुल टाइम से भी ज्यादा थी। लाइक फुल टाइम तो कर ही रही थी मैं उसको, बट बहुत ज्यादा हेक्टिक बन रहा था डे बाय डे। नाम से फ्लेक्सिबल था बट फ्लेक्सिबल ऑलमोस्ट कुछ नहीं था। मैं कॉलेज में रहती थी तब भी कॉल्स आते थे मुझे, तो इट वाज कहाँ से फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल है इसमें। एक दिन मैं जाती हूँ फ्रेशर्स की आउटफिट खरीदने के लिए मेरे पापा के साथ, एंड दैट वाज लाइक लिटरली आफ्टर मंथ्स मैं घर से बाहर जा रही हूँ, लिटरली आफ्टर मंथ्स। उस हिसाब से तुम अगर सोचो तो इंसान को थोड़ा ब्रीथ करने के लिए टाइम चाहिए ना, हर समय स्ट्रेस होता था। तो जब मैं बाहर थी, मैंने जस्ट एक आउटफिट देखा है एंड आई वाज अबाउट टू बाय, मुझे एक कॉल आता है सेइंग दैट सुबलक्ष्मी आपको ना रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि आपका मन शायद काम पे और नहीं है। व्हाट? काम पे नहीं है? मतलब मैंने गधे की तरह मेहनत की है भाई, लिटरली गधे की तरह मेहनत की है, एंड मुझे ये सुनने को मिलता है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सीईओ सब बोल रहे थे कि आप ना मतलब काम पे आपका ध्यान नहीं है, और टीम जब आती है सीईओ के साथ मीट करने के लिए वहां पे तुम बात करते हो। और टॉक्सिक इतना ज्यादा हो गया था कि भाई मीटिंग छोड़ने के बाद जो पीछे बात होती थी वो मुझे पता चल जाता था, कहीं ना कहीं से पता चल जाता था मुझे था कि मैं अगर मीटिंग छोड़ के जाती हूँ, जो है अभी मीटिंग, उनके सामने मेरी चुगली की जाती थी। और अगर मैं उस मीटिंग में हूँ, इस बार टारगेट कोई और है, तो वो मीटिंग छोड़ के जाने के बाद उनके रिलेटेड हमारे सामने बुराई होती थी, लाइक चुगली होती थी। तो इतना टॉक्सिक होते जा रहा था डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे। आई वाज लाइक ठीक है, मैं रिजाइन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए, मैंने जितना भी काम किया है, मेरे को स्टाइपेंड चाहिए मेरा, एंड उस हिसाब से मेरा क्लियरेंस करवा दो, आई लीव। बट सच्ची बता रही हूँ, जब मैं वो मोमेंट बाहर थी एंड जब मुझे ये कॉल आया, मुझे ये सारी चीजें सुनने को मिली और मुझे कहा गया कि रिजाइन करो, आई वाज हार्ट ब्रोकन। ये सच बात है, मुझे बुरा तो लगा, किसी भी इंसान को बुरा लगेगा जब तुमने एक कंपनी में अपना खून पसीना सब कुछ दिया है। फिर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि एनीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ हैपेंस फॉर अ रीजन। वो इंटर्नशिप छोड़ने के बाद जो सुकून मिला, बहुत ज्यादा, मुझे अपने आई लॉस्ट माई सेल्फ इन दैट इंटर्नशिप। मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रही थी, दिन भर काम 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 काम, कॉलेज में भी काम करने की। जब मैं ये लंच ब्रेक में काम करती थी, जो पॉइंट मैंने बोला ना, इट इज रिलेटेड टू फ्रेशर्स के टाइम पे, ठीक है। तो उससे पहले तो हम लोग को फोन अलाउड नहीं थी। जब फोन अलाउड थी फ्रेशर्स के टाइम पे, तब मैंने फोन यूज करके वही काम करती जा रही। बट जब मैंने ये काम फाइनली छोड़ा ना, जो खुशी महसूस हुई, आई फेल्ट लाइक मेरे बॉडी में ना फिर से मेरी सोल एंटर हुई। लिटरली ऐसा लगा ही नहीं था कि इतने दिन से मैं जी रही हूँ, इतने दिन से बस मैं हूँ, ऐसी फील हो रहा था। क्योंकि जब टॉक्सिक कल्चर आप देखते हो ना, जब आप टॉक्सिक कल्चर में रह के आते हो ना, योर एनर्जी गेट्स ड्रेन्ड आउट टू सच अ लेवल कि तुम्हें और है ही नहीं तुम्हें कोई क्षमता कि तुम और कुछ अच्छा करो या सोच पाओ। तुम्हारी क्रिएटिविटी पूरी ब्लॉक हो जाती है, तुम्हें खुद से सेल्फ डाउट आता है, कहीं मेरे में कोई कमी है या ऐसा कुछ। मैंने तो इंटर्नशिप छोड़ दी, बट मेरे टीममेट्स मेरे टच में थे। मेरी टीम को ना इतना दुख हुआ मेरे निकलने पे, दे वर लाइक वी वांट यू, ओनली यू, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी टीम को मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ एंड मेरी टीम मेरी कदर करती है। तो उनका क्लियर कट बात था कि मुझे बस इंटर्नशिप खत्म करके छोड़ देना है। फॉर्चुनेटली ना मुझे मिल गए थे मेरे सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें मुझे मिल गए, उन्होंने दे दिया था। जो भी सर्टिफिकेट्स मैंने अर्न किए थे
परफॉर्मर ऑफ द वीक, परफॉर्मर ऑफ सो जो भी सर्टिफिकेट थे, तो मुझे वो मिल गया। मुझे इस चीज का बुरा लग रहा था कि मेरी टीम है वहां पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरी टीम को छोड़ के। अब मैं नहीं हूँ कंपनी में, राइट, तो मेरी टीम को किसी के अंडर तो भेजना होगा, तो इन्होंने जा जाके उसी के अंदर भेजा जिनसे मुझे भी नफरत होने लग गई थी और इनको भी नफरत होने लग गई थी, जो एकदम डेविल टाइप्स की बिहेवियर रखती थी, जो स्टार्टिंग में बहुत स्वीट थी, ठीक है। तो मेरे को मेरी टीम बाद में मैसेज करती है कि देखो ये कैसे बात कर रही है। जब मैंने वो खोला वो स्क्रीनशॉट एंड व्हेन आई सॉ दैट, आई वाज लाइक, वो पर्सन जो इतनी स्वीटली बात करती थी, शी इज लिटरली पुटिंग डेविल इमोजीज, थ्रेटनिंग कि आज अगर तुमने ये चीज नहीं की तुम्हें निकाल दिया जाएगा, या फिर तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। छुट्टी तुम देते कहाँ हो, पहली बात। उसमें वो कॉर्पोरेट एथिक्स तो थी ही नहीं, वो मैनिपुलेटिव थी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव। तो मुझे वो समझ आ गया था बाद में, जैसे तैसे। तो मेरी टीम में जितने लोग भी थे उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट की एंड फाइनली छोड़ भी दिया। उसके बाद आई वाज लाइक, चलो मैंने कुछ चीजें सीखी है। ऑल्सो मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये लोग फेक रिव्यूज लिखवाते थे, मुझसे भी लिखवाए गए थे फेक रिव्यूज। तो समझ नहीं आता है, अगर तुम्हारी कंपनी उतनी केपेबल है, तुम बस इतना कह सकते थे कि तुम्हें रिव्यूज चाहिए, और इट डिपेंड्स ऑन अस। तुम्हें वहां पे कोई स्पेस नहीं मिलती है टू स्पीक योर ओन माइंड। यू आर लिटरली लाइक उनके इशारों पे, उनके धुन पे तुम्हें नाचना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं पसंद। किया मैंने वो। बाद में जब अक्ल आई, आई वाज लाइक, फ्यूचर में कभी किसी की धुन पे नाचना नहीं है ऑल टाइम। और उनका जो वो 500 वाला कोर्स था बहुत घटिया था। तो एक दिन मैंने सीईओ से जब बोला कि ये कोर्स उतनी वैल्यू प्रोवाइडिंग नहीं लगती है, इंटर्न्स के साथ भी मैंने जब बात की, उनका भी फीडबैक वही था। तो ही वाज लाइक, नहीं, इतने सस्ते में इतना बेस्ट कोर्स और दुनिया में कहाँ पे होगा। बेस्ट कोर्स, ट्रस्ट मी, इतना घटिया कोर्स मैंने कहीं नहीं देखा। और उस कोर्स का ना दाम भी बढ़ाया जा रहा था, उनकी और एक नई सिबलिंग कंपनी बनाई जा रही थी, ठीक है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, सबकी एक्सपीरियंस अलग होती है। अगर तुम्हारे किस्मत में एक अच्छी लीडर मिल गई, तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत सही जाएगा। लेकिन अगर वही किस्मत में तुम्हें कोई बुरी लीडर मिल गई, तुम्हारी लिटरली वाट लग जाएगी, तुम कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाओगे, और कर भी लिया तुमने तो तुम्हें रिकॉग्निशन तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल लिख के रख लेना, नहीं मिलेगी। क्योंकि जो टॉक्सिक माइंडसेट वाले होते हैं ना, उनसे तुम उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे या तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। क्योंकि मैंने भी वही देखा, जब मेरी वो टीम लीड चेंज हुई थी, जो एग्रेसिव वाली मेरी टीम लीड बनी थी, स्टार्टिंग में जो स्वीट थी, वो लिटरली नहीं देख सकती है कि उससे ज्यादा कोई बढ़ के आगे जाए। एंड बहुत सारे लोगों का मेंटालिटी ऐसी होता है कॉर्पोरेट में। तो आपको ये चीज मन में बिठा लेनी है, यू नीड टू बी रेडी फॉर थिंग्स, यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ जब भी तुम्हें लगे कि दिस इज नॉट अलाइनिंग विद मी। कि जब आप कोई कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, प्रॉपरली चेक करके जाओ। अब ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग फेक रिव्यूज लिखवाते हैं। अगर भी आपने कहीं ज्वाइन कर लिया है विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि इमीडिएटली लीव इफ यू गेट टू सेंस दैट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो चीज डिलीवर नहीं हो रही है वहां पे। टॉक्सिक वर्क कल्चर में जीना इज लाइक ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, एक अपॉर्चुनिटी आप छोड़ते हो तो दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है। बस अपने आप को काबिल बनाते रहो, अपस्किल करते रहो, खुद में विश्वास रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।